बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। दुर्गापुर में भाजपा द्वारा कथित कोयला कारोबारी जयदेव खां को आसनसोल दक्षिण संगठनात्मक जिला में स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाए जाने को लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। इस मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस ने जिला कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला अध्यक्ष नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती, जामुड़िया के विधायक हरे राम सिंह, तृणमूल नेता वी शिवदासन दासू, महिला अध्यक्ष असीमा चक्रवर्ती और श्रमिक संगठन के अध्यक्ष अभिजीत घटक सहित अन्य नेता मौजूद थे। तृणमूल नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा एक और माफिया राज के खिलाफ बोलती है, लेकिन दूसरी ओर विवादित कोयला कारोबारियों को ही पार्टी में जगह दे रही है। तृणमूल ने यह भी दावा किया कि जयदेव खां की नजदीकियों को लेकर केंद्रीय नेताओं अमित शाह और प्रहलाद जोशी के साथ उनकी मुलाकातों को लेकर भी सवाल उठे हैं। वहीं भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने पलटवार करते हुए कहा कि तृणमूल को पहले अपने नेताओं से जुड़े अवैध कारोबार के आरोपों पर ध्यान देना चाहिए, उसके बाद भाजपा पर टिप्पणी करनी चाहिए। कोयला माफिया जयदेव खान দলের স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য। আপনাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন যে আপনাদের ওয়াশিং মেশিনে তাহলে জয়দেব খান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে কয়লা মাফিয়া থেকে আপনাদের আমন্ত্রিত সদস্য হয়ে গেলেন। আমরা এই আসন্ন নির্বাচনের প্রাক্কালে বিজেপির মুখোশটা টেনে ছিঁড়ে দিতে চাই। এরা মুখে এক কথা বলে আর কাজে এক কথা করে। এরা সাধারণ মানুষকে এরা ভুল বোঝাচ্ছে, ভাওতা দিচ্ছে, ধান্দাবাজি করছে। এদের কারবার কুখ্যাত অপরাধীদের নিয়ে, মাফিয়াদের নিয়ে এরা দলকে সংগঠিত করছে। বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি, জেনে রাখো দুর্বৃত্ত। বাংলায় যদি দুর্বৃত্তায়নের চেষ্টা করে বাংলার মানুষ রাস্তায় নেমে এর প্রতিরোধ করবে। তাই যতই দুর্বৃত্তদের নিয়ে জেলা কমিটি সাজাও, বাংলার মানুষ কিন্তু পাড়ায় পাড়ায় প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। কয়লা মাফিয়াদের এনে ভয় দেখানো চলবে না। আমরা তৈরি আছি। আমরা জানি স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য পরান্নি বৌদি। তাই বাংলার মানুষ তৈরি হয়ে আছে, আসানসোলের মানুষ তৈরি হয়ে আছে, দুর্গাপুরের মানুষ তৈরি হয়ে আছে, পাণ্ডবেশ্বরের মানুষ তৈরি হয়ে আছে, জামুড়িয়ার মানুষ তৈরি হয়ে আছে, বারামনের মানুষ তৈরি হয়ে আছে, কুলটির মানুষ তৈরি হয়ে আছে, আসানসোল সাউথের মানুষ তৈরি হয়েছে, রানীগঞ্জের মানুষ তৈরি হয়েছে। আমরা আগামী নির্বাচনে 9 জয়, পশ্চিম বর্ধমানের 9টি আসনেই মানুষ এই দুর্বৃত্তায়নের বিরুদ্ধে ভোট দেবেন। খান নিয়ে অনেক বড় বড় কথা বলছে। জয়দেব খান নাকি মাফিয়া, বেআইনি কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল, তাকে বিজেপি জেলা স্পেশাল ইনভাইটি করেছে, জয়দেব খানের ছবি আমাদের মন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা গেছে, এসব নিয়ে অনেক বড় বড় কথা বলছে। আমি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে জিজ্ঞেস করি যে জয়দেব খানের কথা ভুলে যাও, তোমার 2 শাগির্দ বীর বাহাদুর সিং এখনো যে কয়লাওয়ালাদের কাছে টাকা তুলছে তোমার হয়ে, তার হিসাব কে দেবে? বালি সিন্ডিকেটের মাথায় গৌতম ঘোষকে বসিয়ে রেখেছো, তাকে অঞ্চল সভাপতি করে রেখেছো, তার জবাব কে দেবে? বীর বাহাদুর সিং এবং গৌতম ঘোষ এদের মাধ্যমে প্রত্যেক মাসে 8 কোটি 9 কোটি টাকা তুমি যে তুলছো, তার জবাব কে দেবে? এবং এই শিল্পাঞ্চলের সবচেয়ে বড় মাফিয়া, সবচেয়ে বড় কয়লা মাফিয়া, সবচেয়ে বড় বালি মাফিয়ার নাম হলো নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। এবং তৃণমূল কংগ্রেস অন্যান্য নেতারা যারা তার আশেপাশে বসে আছেন তাদেরকে বলছি যে আপনারা এই প্রেস মিটে নরেনের সঙ্গে বসে থাকার আগে নিজের বিবেককে জিজ্ঞেস করুন যে এই অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি বেআইনি কাজকর্মের সঙ্গে কে যুক্ত আছে। নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর মুখে এসব মানায়? সে জয়দেব খান নিয়ে বলবে?
কবার ইডি সিবিআই হয়েছে জয়দেব খানের বিরুদ্ধে? आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हां, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা। আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য, ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে আইটিআই ট্রেনীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়ই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। आसनसोल के कल्ला इलाके में भाजपा नेता और समाजसेवी कृष्णा प्रसाद ने अपने आवासीय कार्यालय में पत्रकार सम्मेलन किया। उन्होंने बताया कि 14 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली सभा की सफलता के लिए उनके आवास के पास मैदान में हवन का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अधिक संख्या में सभा में पहुंचने की अपील करते हुए कहा कि बंगाल में परिवर्तन की हवा चल रही है। उन्होंने चैती छठ के अवसर पर जल्द ही वस्त्र वितरण सहित विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम शुरू करने की भी घोषणा की। साथ ही आसनसोल उत्तर के रेलपार इलाके में युवाओं में बढ़ती नशे की समस्या, 25 नंबर वार्ड में तालाब भरकर बाजार निर्माण और 28 नंबर वार्ड में चल रहे स्कूल को तोड़ने के आदेश को लेकर प्रशासन और विधायक मोलोए घातक पर विकास और कानून व्यवस्था की अनदेखी का आरोप लगाया। हमने 501 मंदिर का जीर्णोद्धार का बात किया था। बहुत सारे मंदिर, 48 मंदिर बना। हम सब समय 33 साल समाज सेवा मूलक काम किए हैं, हमेशा एक्टिविटी में रहे हैं। हाँ, ये बोल सकते हैं कि जब चुनाव हुआ था, जो परिस्थिति बनी थी, लेकिन हम सनातनी काम किए हैं, समाज का काम किए हैं। प्रत्येक साल छठ आया, प्रत्येक साल जो बड़े पैमाने पे साल में 3-4 प्रोग्राम हो, चाहे रक्तदान शिविर हो, चाहे लोगों तक सेवा पहुंचाना हो, कभी बंद नहीं हुआ। आप बोलना चाह रहे हैं कि भाई के बैनर भी छोड़ करके साथ में काम हुआ, हमने कभी बैठा नहीं और समाज के काम किया। भारतीय जनता पार्टी के लिए किया, और सनातनी लोगों के लिए, समाज को काम किया, और सब वर्ग के लिए काम किया, समाज के हर वर्ग के लिए काम किया, सिर्फ एक वर्ग के लिए नहीं। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कथित अपमान के विरोध में आसनसोल के कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के नियामतपुर में आदिवासी समुदाय के लोगों ने जीटी रोड पर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कोलकाता में एक कार्यक्रम में शामिल हुई थी। उस कार्यक्रम में
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अनुपस्थिति को लेकर सवाल उठे और इसे राष्ट्रपति का अपमान बताया गया। आदिवासी समुदाय के लोगों ने शालकालानी में सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पुलिस के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों ने करीब 10 मिनट बाद सड़क जाम समाप्त कर दिया, जिसके बाद यातायात सामान्य हो गया। রাজ্য সরকার এসসি এসটিদেরকে যেভাবে পরপর তার মন্ত্রী এমএলএ এমপিরা যেভাবে অত্যাচার করে যাচ্ছে তার প্রতিবাদে আমরা এখানে বসেছি। जामुड़िया में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। बुधवार को तपसी क्षेत्र के कुनुस्टोडिया गांव में लंबे समय से बंद पड़े भाजपा के एक पार्टी कार्यालय को फिर से शुरू किया गया। भाजपा ओबीसी मोर्चा के नेतृत्व में आयोजित इस सभा में कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर काम करने और घर घर जाकर केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस मौके पर भाजपा नेता संतोष सिंह, ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप प्रसाद, राष्ट्रीय सदस्य शंकर चौधरी, वरिष्ठ नेता प्रमोद पाठक, दीपक दास, सुशील जोशी, मंडल अध्यक्ष पिनाकी राय, गौतम कुमार राय, शिवराम मंडल, राजू मंडल सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। জামুড়িয়া মন্ডল একের ওবিসি মোর্চার অফিস উদ্বোধনী এবং 14 তারিখে যে আমাদের মোদিজির জনসভা ব্রিগেড গ্রাউন্ডে হবে, প্যারেড গ্রাউন্ডে, ওইখানে আমরা যাব। তার জন্য একটা ছোট মিছিল কাটা মোড় পর্যন্ত করব। आसनसोल नगर निगम के जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के वार्ड संख्या 12 स्थित गोविंद नगर में एक सामुदायिक केंद्र, शेड तथा सड़क किनारे हाई मास्ट लाइट का उद्घाटन विधायक हरिराम सिंह ने किया। विधायक निधि से लगभग 7 लाख रुपए की लागत से बनाए गए इस शेड का उद्घाटन किया गया, जबकि हाई मास्ट लाइट का निर्माण सांसद निधि से कराया गया है। इस अवसर पर गोविंद नगर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सतनाम सिंह, सचिव बेअंत सिंह, कोषाध्यक्ष हरजिंदर सिंह, सह अध्यक्ष मोहन सिंह, सहसचिव बलबीर सिंह, अर्जुन सिंह, सलविंदर सिंह, यशवंत सिंह सहित अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों की भी अच्छी भागीदारी देखी गई। लगभग 7 लाख रुपया ये शेड के लिए दिया था और एक मास लाइट हमारे एमपी साहब के कोटा से यहाँ पर दिया गया है। तो हमने जो कमिटमेंट किया था उसको पूरा किया। दुर्गापुर में एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पुलिस अधिकारी मनोरंजन मंडल के घर पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि बुधवार सुबह केंद्रीय सशस्त्र बलों के जवानों के साथ ईडी अधिकारियों ने उनके आवास पर पहुंचकर तलाशी अभियान शुरू किया। गौरतलब है कि इससे पहले 3 फरवरी को भी ईडी ने मनोरंजन मंडल के घर पर छापा मारा था और कई घंटों तक तलाशी ली थी। इसके बाद उन्हें सीजीओ कॉम्प्लेक्स में पूछताछ के लिए 3 बार तलब किया गया, लेकिन सूत्रों के अनुसार वह अब तक पेश नहीं हुए। इसी मामले में ईडी ने बुदबुद थाना के पूर्व अधिकारी मनोरंजन मंडल को एक बार फिर 13 मार्च को पूछताछ के लिए तलब किया है।